السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ ٹی اسکوائر عالیشان عمارت بنے گی، نومبر کے آخر تک کام شروع ہوگا۔ مؤثر منصوبہ بندی کی جائے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ وقف ترمیمی قانون سے متعلق سپریم کورٹ کے عبوری احکام کا اثر سنبل مسجد مقدمے پر پڑ سکتا ہے۔ دلی میں مسلم پرسنل لا کے اجلاس سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب، افغان وزیر خارجہ کے دورہ ہند کا کیا خیر مقدم۔ مجالس مقامی انتخابات پر کوئی روک نہیں ہے، عدالت کے فیصلے کی وضاحت۔ حکومت کا حکم التوا پر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ اور قطب اللہ پور کے حدود میں بہادر لڑکی نے چوری کی واردات کو بنایا ناکام، سڑک پر کیا سارق کا پیچھا، ویڈیو وائرل۔
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टी स्क्वायर एक आलीशान इमारत बनेगी और इसका काम नवंबर के आखिर तक शुरू होना चाहिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर आला ने कहा कि अवाम को तकलीफ के बगैर पार्किंग की मनसूबाबंदी की जाए, एप्पल जैसे आलमी ब्रांड के आउटलेट के लिए जगह फराहम की जाए, कैंपस के अंदर यूटिलिटी जोन कायम किया जाए, 24 घंटे टेक्निकल हब की सहूलत दस्तियाब रखी जाए, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज के लिए आर्जी मसनूई जहानत का हब कायम किया जाए, मसनूई जहानत हब के लिए कॉप्स फंड्स बनाया जाए, आला बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ एक आलमी AI मुशावरती बोर्ड तश्कील दिया जाए। इजलास में रियासती वजीर IT और सनतें श्रीधर बाबू के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के उबूरी अहकाम पर मायूसी का इजहार किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आला अदालत के उबूरी अहकाम वक्फ जायदादों को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि उबूरी अहकाम में कलेक्टर के इख्तियार पर रोक लगाई गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि आसार कदीमा के तहत कई वक्फ जायदादें हैं, अदालत ने इस सिलसिले में राहत नहीं दी है। इसका असर संभल की मस्जिद के मुकदमे पर भी पड़ने वाला है। ASI के तहत जो दरगाहें, मसाजिद और खानखाहें हैं, इस सिलसिले में मुमकिना शरारत की जा सकती है। सदर मजलिस ने कहा कि मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की वक्फ जायदादों को छीनने के लिए यह कानून बनाया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उबूरी हुक्म उल्तेवा से वक्फ जायदादें तबाह हो जाएंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे में महदूद शुरका की इजाज़त को डिक्टेटरशिप करार दिया। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत NCR और NPR कराना चाहती है, मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमको बड़ी मायूसी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटरिम ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाज़त थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुजूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाए, तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा, और सवाल ये उठेगा कि क्या आप मुसलमान है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुश ना हो कि सेक्शन 3C पर रोक लग गई। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो तहकीकात करेगा, और दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसका DDA कहता है कि उनकी जायदाद है, जिसमें एक मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी साहब है। तो आप लिख कर रख लीजिए कि उन 123 प्रॉपर्टीज पर भी भारत के वजीर आजम की नज़र है कि कैसा उसको हासिल किया जाए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। तीसरी बात यह है कि आसार खदीमा ASI के तहत आप सच्चर कमेटी उठाकर पढ़िए, 170 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो वफ़ की हैं आसार खदीमा के मातहत हैं, उनका कब्जा है, ये इंक्रोचर लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया तो उसका होगा ये कि जहां ये जायदाद वफ़ थी अब ये वफ़ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानखाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI में, हो सकता है कि शरारत करे वहां पर कि आप सिर्फ जुमे की नमाज पढ़िए या उरस मत करिए, इमारत फुला है, ऐसी है। लिमिटेशन एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन कानून नाफिज नहीं होता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यानी जहां जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इलीगल एंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में वक्फ आप अगर आपकी भी प्रॉपर्टी होगी तो आप वक्फ नहीं कर सकते। ये बताइए कैसा होगा ये?
अगर कोई मुसलमान कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है तो जायदाद अगर उसकी है और वक्फ नहीं करेगा तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 26 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है। वक्फ और औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ और औलाद करना चाहता है तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्किस बानो को मिलाकर मिल सके, मगर वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहां पर यह कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ और औलाद भी नहीं होगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान यह है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की जरूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतजाजी तौर पर लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह NPR NRC करने जा रहे हैं। मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 100 यहां पर जमा है, मैं लिख के दे रहा हूं वजीर आजम, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहां पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के वजीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ियों को मदऊ न किए जाने से मुताल्लिक़ तनाज़े पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया को ही लाजवाब कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी से जब इस सिलसिले में मीडिया ने सवाल किया तो बैरिस्टर ओवैसी ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में लड़कियों को हिजाब पहनने नहीं दिया जाता, इसकी बात क्यों नहीं की जाती। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात होने चाहिए, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की मौजूदगी जरूरी है। डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होना चाहिए। नालेमान वो स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया और सरकार का कहना है कि हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं। अरे यार, भारत में बच्चों को हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा यार, तो उसकी बात नहीं। तेलंगाना के मजालिस मुकामी इंतखाबात के इंतखाबी अमल पर कोई रोक नहीं है, पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट की वजाहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से BC तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वाले अहकामात को तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि चूंकि मुकामी इदारों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उनके इंतखाबात पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक कराए जा सकते हैं। अलबत्ता रिजर्वेशन की मजमूई हद 50% से तजावुज़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के राहुल रमेश वाक मुकदमे 2022 का हवाला देते हुए कहा कि अगर रियासत या मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़ों में मुकामी इदारों की मुद्दत ख़त्म हो जाए और ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई मुमकिन न हो तो इलेक्शन कमीशन इन सीटों को ओपन कैटेगरी के तौर पर नोटिफाई करके इंतखाबात करा सकता है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत के GO नंबर 9
जिस में BC तहफ़्फ़ुज़ात 42% किए गए थे, के साथ इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ GO 41 और 42 नीज़ इलेक्शन शेड्यूल नोटिफिकेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। जुमा की निस्फ शब जारी तफसीली अहकामात में अदालत ने कहा कि विकास किशोर राव केस की रोशनी में GO 9, 41 और 42 पर अबूरी रोक लगाई जा रही है, लेकिन इंतखाबात पुराने तरीके से कराए जा सकते हैं। अदालत ने दो टोक कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात की हद 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लिहाजा इन मखसूस सीटों को ओपन कैटेगरी में शामिल करके इलेक्शन कराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि हुकूमत के ताज़ा GO के तहत तहफ़्फ़ुज़ात 67% तक पहुंच रहे हैं, जबकि पहले SC को 15%, ST को 10% और OBC को 25% यानी कुल 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के मुकर्ररा हद के अंदर है। अदालत ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत OBC तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात देना चाहती है तो उसे किशन मूर्ति केस में मुतय्यन करदा ट्रिपल टेस्ट अमल पर सख्ती से अमल करना होगा। हुकूमत ने यह भी इस्तदलाल दिया कि SC, ST और BC के लिए 50% हद कतई नहीं है और मखसूस हालात में नरमी की गुंजाइश है, जिसके लिए इंदिरा सोहानी और जनहित अभियान मुकदमात का हवाला दिया गया। ताहम अदालत ने कहा कि तमाम साबिक़ा अदालती फैसलों का जायजा लेने के बाद ये जाहिर होता है कि हुकूमत ने विकास किशोर राव गावली केस में तय करदा 50% की हद पर अमल नहीं किया। अदालत ने मजीद वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल 243 ओ के तहत अदालत इंतखाबी अमल में मदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए अदालत ने सिर्फ GO 9, 41, 42 पर अबूरी रोक लगाई है। इंतखाबी अमल पर कोई पाबंदी नहीं है। मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के GO पर हुक्म इल्तिवा जारी करने के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। हुकूमत ने स्पेशल लेफ्ट पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के हुक्म इल्तिवा को बर्खास्त करके अमल करने की हिदायत दें ताकि इंतखाबी अमल को जारी रखा जाए, जबकि पर्चे नामजदगी दाखिल होने का अमल शुरू हो चुका है। इसमें हाई कोर्ट की मदाखलत करना मुनासिब नहीं है। GO 9 पर अमल करने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में जूम इजलास में सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी शरीक थे। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास 16 अक्टूबर को मुनक्किद होगा। इस इजलास में आबपाशी प्रोजेक्ट और मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के टेंडर से मुतालिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में BC रिजर्वेशन के मसले पर भी तफसीली गौर किया जाएगा। मजालिस मुकामी इंतखाबात के इनेकाद पर पैदाशुदा हालात के पेश नज़र ये इजलास खास अहमियत रखता है। हाई कोर्ट की जानिब से 50% रिजर्वेशन की हद के अंदर इंतखाबात कराने की इजाज़त देने के बाद काबीना इस पर मजीद मुशावरत करेगी। BRS पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि बैग भर कर दिल्ली ले जाना ही रेवंत रेड्डी का काम नहीं है। वजीर आला की जिम्मेदारी है कि वह तेलंगाना के अवाम की बहबूद पर तवज्जो दें। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि जब मरकजी हुकूमत और आंध्र प्रदेश की हुकूमत दोनों मिलकर तेलंगाना की आवाज़ और इसके हक को दबा रहे हैं, वजीर आला रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश 463 TMC पानी मुंतकिल कर रहा है, कर्नाटक अलमाटी के खद में इजाफा कर रहा है। वजीर आला की खामोशी से तेलंगाना का नुकसान हो रहा है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी शुरू से ही चंद्रबाबू नायडू के आदमी हैं। वजीर आला को अपेक्स इजलास में शिरकत न करने का BRS ने मशवरा दिया था। वजीर आला अचानक आधी रात को दिल्ली रवाना हो गए और ओहदेदारों के इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद बाहर आकर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बनकाचरला पर कोई बात नहीं हुई है तो इसको रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर एक बार मरकजी वजीर के मकतूब से यह साफ हो गया। रेवंत रेड्डी ने जो धोखा दिया है वो मंजर आम पर आ गया है। इससे साफ जाहिर है कि रियासत के मफादात के बारे में रेवंत रेड्डी कितने गैर जिम्मेदार हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि आबी वसाइल से तेलंगाना के हक का एक खतरा पानी भी किसी को नहीं दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब इख्तिदार संभाला उस वक्त मरकजी हुकूमत से बनकाचरला प्रोजेक्ट के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि KCR ने जो अल्फाज कहे थे BRS पार्टी के लीडर्स को इसका मुहासिबा करना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए आबी मसाइल पर KCR ने ही बात की थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला गया।
महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हाई कोर्ट के हुक्म इल्तिवा के बाद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इन तहफ़्फ़ुज़ात को रोकने में बीजेपी असल मुल्ज़िम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर बीसी के हुकूक सल्ब कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ही इंतखाबात कराए जाएंगे और कामारेड्डी में बीसी सभा जरूर मुनक्किद होगी। वजीर ए लक्ष्मण ने कहा कि बीआरएस कायदीन के गुरुकुल स्कूल का तालीमी मियार गिरने वाले बयानात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 माह कबल ही ओहदा संभाला है। वजीर मौसूफ ने कहा कि बासर आईआईटी में 9000 तलबा ने एहतजाज किया था, लेकिन कोई वजीर नहीं गए और न ही किसी रुकन असम्बली ने दौरा किया। उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में कितने वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर हिम्मत है तो स्कूल्स पर कितने फंड्स खर्च किए गए, इस पर वो बहस के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने डाइट चार्जेस में 200% का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। वजीर मौसूफ ने कहा कि एससी, एसटी और अक़लियती हॉस्टल्स में किसी किस्म की दुश्वारियां न हों, इसकी जिम्मेदारी उनकी है। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने अपने साथी वजीर ए लक्ष्मण कुमार के हमराह अमेरिका फायरिंग वाक़े में हलाक हुए पी चंद्रशेखर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि पी चंद्रशेखर की मौत का हमें अफसोस है। हमने इस सिलसिले में अमेरिकी हुकूमत से भी राब्ता किया है। श्रीधर बाबू ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने चंद्रशेखर के अफराद ख़ानदान के लिए 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है और उनके भाई को मुलाजिमत देने का भी वादा किया है। गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से शिवानगर भोजागुट्टा में 3 मकानात मुकम्मल तौर से मुनहदिम हो गए। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में मुतल्लिका तहसीलदार और ओहदेदारों को मुतासरा मकानात का मुआयना करने के लिए कहा गया था, लेकिन ताहाल इस पर अमल नहीं किया गया। मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि मजलिस तीनों घरों के मुतासरीन के लिए मकानात बना कर देगी, जहां वो 2BKH अलॉट होने तक रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि ज़ाब्ता अखलाक की वजह से मज़कूरा ओहदेदारों ने दौरा नहीं किया, जबकि मुतासरा अफराद खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस मुतासरीन के लिए घर बनाने के लिए जगह का इंतखाब कर लिया है और इस पर काम जल्द शुरू होगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदार शफ़ीउल्लाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की इमारतें, तालीमी हालात और दीगर अहम उमूर पर बात की, क्योंकि पुराने शहर के मज़कूरा स्कूल्स में बदनज़मी पाई जाती है, जिसके लिए सदर मजलिस को शिकायतें मौसूल हो रही थीं। उन्होंने सदर मजलिस का एक मकतूब भी शफ़ीउल्लाह के हवाले किया और कहा कि पुराने शहर के मज़कूरा स्कूल्स की हालत इंतहाई खस्ता है, जिसके लिए सदर मजलिस फिक्रमंद हैं और रेसिडेंशियल स्कूल्स में ऑडिटोरियम भी तामीर करने और स्कूल के लिए ज़ाती इमारत खरीदने के लिए इक़दाम करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने हल्क़े असम्बली गोशा महल के तरक्याती कामों के सिलसिले में बलदिया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और दीगर ओहदेदारों से बात की। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों और 391 नाले के मौजू पर भी बात की। खुतबुल्लाहपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े चिंताल भगत सिंह नगर में एक लड़की ने दिन दहाड़े रहजनी की कोशिश को नाकाम बना दिया और कुछ फासले तक दिलेरी के साथ सारिक का पीछा किया। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया जाता है कि सारिक भवानी नामी लड़की के घर में दाखिल हुआ था और जब उसकी नक्ल हरकत पर भवानी ऊपर के फ्लोर से नीचे आई, सारिक उसे देखकर भागने लगा। भवानी ने घर से निकलकर उसका पीछा भी किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। भवानी ने खतरे की परवाह न करते हुए सारिक का पीछा किया। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी के जरिए सारिक की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के गजुवाका में ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर मुकामी टास्क फोर्स पुलिस ने लैविश ब्यूटी सेंटर पर धावा किया। ब्यूटी सेंटर के 4 ऑर्गेनाइजर बशमूल 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लड़कियों को भी तहवील में लिया गया है।
इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। T-Square आलीशान इमारत बनेगी, नवंबर के आखिर तक काम शुरू होगा। मौसर मंसूबाबंदी की जाए, वजीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अबूरी अहकाम का असर संभल मस्जिद मुकदमे पर पड़ सकता है। दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब, अफगान वजीर खारजा के दौरे हिंद का किया खैर मकदम। मजालिस मुकामी इंतखाबात पर कोई रोक नहीं है, अदालत के फैसले की वजाहत। हुकूमत का हुक्म इल्तिवा पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। और खुतबुल्लाहपुर के हुदूद में बहादुर लड़की ने चोरी की वारदात को बनाया नाकाम, सड़क पर किया सारिक का पीछा, वीडियो वायरल। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।